بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ میں آپ کو لیکچر نمبر 2 دوں گی۔ آپ کو میں نے لیکچر نمبر 1 میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بتایا تھا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور قائد اعظم نے مختلف مواقع پہ نظریہ پاکستان کو کس طرح نظریہ پاکستان کی کس طرح سے وضاحت کی تھی، اور علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کی کس طرح وضاحت کی تھی۔ نظریہ پاکستان بچے یہی ہے نا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اور اس قادر مطلق قوت کو نافذ کیا جائے، اور وہاں پہ ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے بچے کہ اسلام جو ہے وہ محض عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہی نظریہ پاکستان ہے نا کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے جو ہے وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام ہو جہاں مسلمان اپنے اسلامی تشخص، اقدار اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہی ہے نا نظریہ پاکستان۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، یعنی نظریہ پاکستان کن اجزاء سے، کن پوائنٹ سے مل کر جو ہے وہ بنا ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں کہ اجزائے ترکیبی سے مراد وہ عوامل یا عناصر ہیں جن سے مل کر نظریہ پاکستان وجود میں آیا اور جن پر عمل کرنا نظریہ پاکستان کا حقیقی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے عقائد اور ہماری عبادات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو مطالبہ تھا اس کے پس منظر میں یہ سوچ تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنی عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان عقائد و عبادات کے بغیر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ ایک سچا مسلمان اپنی عقائد اور عبادات میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پابندی برداشت نہیں کرتا۔ برِ صغیر کے مسلمان ایک ایسے خطے کے خواہش مند تھے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقائد و عبادات پر عمل کر سکیں۔ اب آپ بتائیں، کو معلوم ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں؟ ہمارے عقائد میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا، اور ہماری عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان الہامی کتابوں پہ توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، یوم آخرت پہ، فرشتوں اور الہامی کتابوں، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور ہماری عبادات آپ کو معلوم ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور حج، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کو بھی جو ہے اسلام میں اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے شب و روز جو ہیں اسی ذات کی خوشنودی کے لیے گزارنا اسلام ہے۔ اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہے اور جہاد بالمال بھی ہے، اور ان دونوں کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تمام عبادات اور جہاد کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا پابند بنانا۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اللہ کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہیں۔ یہ ہماری عقائد ہیں، یہ ہماری عبادات ہیں، جو کہ ہمارے نظریہ پاکستان کا پہلا ایلیمنٹ ہے، پہلا عنصر ہے کہ ان چیزوں کو ہم جو ہیں وہ ان کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ دوسری چیز جو آتی ہے
जो आप कह सकते हैं कि दूसरा पार्ट जो है अकायद और इबादत के अलावा वो जो है जमहूरियत है, जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ है, ठीक है। जमहूरियत इस्लामी रियासत और जो है उसकी बुनियाद ही मुशावरत पर है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वम्रुहुम शूरा बैनहुम, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 38 है। इसका तर्जुमा है कि आपस में मशवरा कर लिया करो, ठीक है। मशावरत जमहूरियत का हकीकी जौहर है। अवाम के हकूक़ का ख्याल रखना, इन्हें यकसा मौक़े फराहम करना, तमाम तबकों को दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना, ज़ात पात रंग व नस्ल फ़िरके और ज़ुबान की बुनियाद पर किसी से कोई इम्तियाजी सलूक ना करना, और हर वक्त अवाम और खुदा के सामने जवाबदेही के लिए तैयार रहना अमीरुल मोमिनीन की वो जिम्मेदारियां हैं जो कि इस्लाम का जमहूरी निज़ाम इस पर आयद करता है, ठीक है। और जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों खुलफाए राशिदीन ने खूब निभाया। अगर आप खुलफाए राशिदीन की लाइफ को देखें, सबसे पहले आप ये देख लें तो उनका इंतखाब जो है वो किस तरह से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद चारों खुलफाए राशिदीन का इंतखाब जो है वो अंसार और मुहाजिरीन के मुत्तफिका फैसले से हुआ और अवाम ने फिर उनकी बैत की, फिर वो जो हैं खलीफा जो हैं वो बने। सबसे आपको मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे और जब उन्होंने अपनी खिलाफत संभाली तो उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए फरमाया कि उनके सिर्फ उन अहकामात पर अमल किया जाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से मुतसादिम ना हो। आपका ये खुतबा इस्लाम के जमहूरी तसव्वुरात का हकीकी तर्जुमान है और आमराना निज़ाम के खिलाफ ऐलान जंग की हैसियत रखता है। इसी तरह आप अगर नस्रिया पाकिस्तान को देखें कि ऐसी जमहूरियत चाहते थे, क्या में पाकिस्तान जो है दर हकीकत इन तमाम ये जो जमहूरी रवायात हैं इनके अहया फ़रोग़ की ही एक अमली कोशिश थी। इब्तदाई इस्लाम के जमहूरी और मुआशरती असूलों को नाफिज करना ही मकसूद हकीकी था। क्या में पाकिस्तान का एक मकसद ये भी था कि हकीकी जमहूरियत जो इस्लाम के इब्तदाई दौर में थी वैसी ही जमहूरियत यहाँ पे जो है वो नाफिज की जाए। और इसी ज़मन में 14 फरवरी 1948 को सिबी में तकरीर करते हुए कायदे आज़म ने इसको यूं वाज़े किया था। ये देख लें इस मकसद को कायदे आज़म ने किस तरह से वाज़े किया। कायदे आज़म के अल्फाज हैं, आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फराहम करें। अल्लाह जुल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बाहम सलाह मशवरे से तय करें। ये जो मैंने सूरह शुरा की आयत नंबर 38 पढ़ी थी, ये उसी का हवाला जो है वो कायदे आज़म दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो है नजरिया पाकिस्तान का तीसरा पार्ट जो है वो है मुआशरती इंसाफ और मसावात। इस्लाम जो है आपको मालूम है अमन, अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। ये अमनो आश्ती का मजहब है। बरसगीर के मुसलमानों ने जब पाकिस्तान की तख्लीक का फैसला किया तो इस ख्वाहिश का वाज़े इजहार किया कि वो सही इस्लामी माशरे का दोबारा क़याम अमल में जो है वो लाना चाहते हैं। वो अदल, मसावात और माशरती बहबूद के तकाज़ों को पूरा करना चाहते हैं और पाकिस्तान को जदीद दुनिया के सामने एक मिसाल बनाकर पेश करना चाहते हैं ताकि दुनिया की दूसरी अक़वाम उनके निज़ाम से मुतासिर होकर उनकी तक़लीद करें, ठीक है। हमें मालूम है कि इस्लाम सबसे ज़्यादा जिस पे जोर देता है वो समाजी इंसाफ है, ठीक है। आज़ाद अदलिया जो है, आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी जो है वो रियासत के बुनियादी असूल हैं, ठीक है। हज़रत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, ना इंसाफी की नहीं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप खुलफाए राशिदीन की जो है
آپ उनका दौर देखती हैं तो हजरत उमर की मिसाल सामने आती है कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत जो था उसमें काजी ने उनके बेटे को कोड़ों की सजा दी थी, तो आपने अपने बेटे की भी सजा माफ नहीं की थी। ठीक है, ये इसी तरह इस्लामी रियासत जो है उसमें कानून जो है वो सबके लिए बराबर, सहूलियात जो हैं वो सबके लिए बराबर। इस्लामी रियासत में हकूकुल इबाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने पर जोर दिया गया है। माशरे का जो निस्बतन कमज़ोर तबका है उसके लिए भी जो है उसकी ज़रूरियात को पूरी करना भी जो है इस्लामी माशरे और हुकूमत का फर्ज है। मसलन इस्लाम ने, मैं आपको बताती हूँ, इस्लाम ने औरत को जो है वो बावकार मकाम अता किया है। औरत को माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख के औरत का रुतबा कितना बुलंद किया। बेटी को अल्लाह ने रहमत बनाकर उसका रुतबा कितना बुलंद किया। बीवी को नाजुक आबगीने से तशबीह दी, उसका कितना बुलंद किया। और एक बात और बेटा, कि जब कुरान में औरतों के कुरान और हदीस में जब औरतों के हकूक की बात आई है तो वो मर्दों के हकूक से पहले आई है। और इस्लाम वो पहला मजहब है जिसने विरासत में औरतों का जो है वो हक रखा। इसी तरह बूढ़ों, नादारों, यतीमों और बेवाओं की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करने की जिम्मेदारी जो है इस्लामी माशरे में है, वो इस्लामी माशरे पर है और हुकूमत पर है। इसी तरह निज़ाम मईशत जो है उसके लिए भी इस्लाम ने असूल बताए हैं। इस्लाम जो है वो दौलत को चंद हाथों में जो है दौलत का चंद हाथों में दौलत का इर्तिकाज़ जो है वो पसंद नहीं करता, बल्कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम का एक मरबूत और मुकम्मल निज़ाम होता है। पाकिस्तान बनाने का जब फैसला हुआ तो इन तमाम दर्जा बाला जो इक़्तिदार है इनको अपनाने और रियासत को एक ऐसी मिसाली रियासत बनाने का ख्वाब देखा गया जिसमें क्या हो, उसमें अखुवत हो, भाईचारा हो, बर्दाश्त हो और बाहमी तावन के जज्बों को फ़रोग़ दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। ठीक है, ये पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का क़याम जब अमल में आया तो एक तरफ शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ात की अहमियत तस्लीम की गई, तो दूसरी जानब उनके फ़राइज़ पर भी जोर दिया गया। ठीक है, एक इस्लामी मुआशरे में जो है आपको आपके हकूक़ जो हैं वो उस वक्त मिलेंगे जब आप अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे, क्योंकि हकूक़ व फ़राइज़ का जो है वो चूली दामन का साथ है, ये लाज़िमुल मलज़ूम है। एक का फर्ज जो है वो दूसरे का हक बन जाता है। फर्ज पूरा करेंगे तो आपको जो है वो हक मिल जाएगा। एक शख्स फर्ज पूरा करेगा तो वो दूसरे का हक हो जाएगा। एक इस्लामी रियासत में तमाम शहरियों को किसी तमीज़ के बगैर मुख्तलिफ बुनियादी हकूक़ मुहैया किए जाते हैं। हकूक़ वो सहूलतें होती हैं जो शहरियों को रियासत की तरफ से दी जाती हैं ताकि वो मुआशरे में अच्छी ज़िंदगी बसर करें, उनकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत की जाती है और इन्हें इल्म व सेहत के हसूल में मदद दी जाती है। और ये जो है ये सारी सहूलियात जो है 1400 साल पहले इस्लाम ने अपने लोगों के लिए की थी। हकूक़ के हवाले से अमीर गरीब, गोरे काले, अरबी और अजमी में कोई फ़र्क नहीं रखा गया। और जो क़याम पाकिस्तान में भी यही बात थी कि इंसानों को बराबर के हकूक़ मिले और वो अपनी तरक्की के यकसां मौक़े जो हैं वो हासिल कर सकें। ठीक है,
उसके बाद आखिरी जो आता है अच्छा, इसके अलावा ये भी था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के मुतालबे में ये बात कायद-ए-आज़म ने उस वक्त ये वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस्लाम, क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लाम किसी सूरत भी ये इजाज़त नहीं देता कि इस्लामी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने वाली अक़लियतों के जान, माल, इज़्ज़त और मज़हबी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए। आपको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया था, ठीक है। अब ये है कि पाकिस्तान में इस्लामी मुआशरे के असर-ए-नौ क़याम का जो ख्वाब देखा गया था, इंसानी अज़मत को नए सिरे से उजागर करने और अदल-ओ-इंसाफ़ पर मबनी मुआशरे के लिए इस्लामी असूलों को अपनाने का फ़ैसला हुआ। क़याम पाकिस्तान दर हकीकत इस्लामी मुआशरे के क़याम की तरफ एक बड़ा अहम कदम था, ताकि मुसलमान अपने मज़हबी असूलों के मुताबिक रोज़मर्रा इज्तिमाई और इनफ़रादी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और जो आखिरी पॉइंट था, आखिरी एलिमेंट था नज़रिए पाकिस्तान का कि वो अख़ुवत और भाईचारा, ठीक है। इसको अख़ुवत और भाईचारा से क्या मुराद है? आपको मालूम है कि इस्लाम जो है अमन का दाई है, तो मुसलमानों के माबैन अख़ुवत और भाईचारे के जज्बों को फ़रोग़ देने पर जोर देता है। भाईचारे से मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी, एहसान और शफ़क़त में इज़ाफ़ा होता है। तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। एक का दुख सबका दुख है, एक की खुशी सबकी खुशी है और वे एक दूसरे की मदद अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यही जज्बात इस्लामी रियासत को इस्तेहकाम बख्शते हैं। खुदा करे कि हम जल्द अज़ जल्द इन तमाम इस्लामी इक़दार को अपने मुल्क में राइज करने में कामयाब हो जाएं। आमीन। ठीक है बेटा, ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है जो नज़रिए पाकिस्तान जो कि नज़रिए पाकिस्तान के आप समझ लें एलिमेंट्स हैं या अनासिर हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कौन से हैं। नज़रिया पाकिस्तान जो है एक अलहदा इस्लामी मुमलिकत, जहन में लाइएगा, मुझे ये बार बार रिपीट करना पड़ता है। नज़रिया पाकिस्तान क्या है? अलहदा इस्लामी मुमलिकत जहाँ मुसलमान अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़्तिदार और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। यही है ना नज़रिया पाकिस्तान। और कैसी इस्लामी रियासत जिसमें मुसलमान अपने अकायद व इबादात को बहुत खुश असलूबी से, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के जो है वो सरअंजाम दे सकें। ऐसी इस्लामी रियासत जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ हो, जहाँ अमीरुल मोमिनीन या सरबराही मुमलिकत जो है वो ना सिर्फ अवाम अल्लाह और अवाम दोनों के सामने जो है वो जवाबदेह है, वो मुआशरे में इंसाफ, इस्लामी रियासत जो है उसके मुआशरे में इंसाफ हो, अदलिया आज़ाद हो, कानून की हुक्मरानी हो, और जहाँ जो थोड़े कमज़ोर तबका है लोगों का, उसके हकूक जो हैं वो किसी तरह भी पामाल ना हो, बल्कि वो हकूक पूरे करने जो हैं वो रियासत की जिम्मेदारी हो। इसी तरह शहरियों को जो है उनके हकूक दिए जाए, उन्हें तिबी सहूलतें दी जाएँ, उन्हें तालीमी सहूलतें दी जाएँ, उन्हें ज़राए आमदोरफ्त की सहूलतें दी जाएँ। लेकिन अब इन सारी सहूलतों के बाद जो है उनका भी फ़र्ज़ है कि वो रियासत की हिफाजत और इसकी तामीर व तरक्की के लिए कोशिश जो है वो करें। शहरी के फ़राइज़ और रियासत के हुकूक, ये दोनों एक ही चीज़ है। और इसकी बुनियाद अगर आप देखें तो वो समाजी इंसाफ का जो आलमी मंशूर है, यानी खुतबा हज्जतुल विदा पर जो है वो रखी गई थी। हाँ, इसके अलावा ये जो नज़रिया पाकिस्तान है कि ऐसी इस्लामी रियासत जिसमें इस्लामी तशख़्ख़ुस, इक़्तिदार और इस्लामी तालीमात का ज़ोर हो, वहाँ पे
अखुवत और भाईचारा ना हो तो बात नहीं बनती। अखुवत और भाईचारा जो है वो इस नस्रिया पाकिस्तान का या इस इस्लामी रियासत जिसका ख्वाब बरे सगीर के मुसलमानों ने देखा था, वो जो है उसमें अखुवत, भाईचारा, अमन व अमान, मोहब्बत, खुलूस, कुर्बानी, एहसान और शफकत सब कुछ मौजूद। ठीक है, किताब लेना